everyone, welcome to eTuition Education for Better Tomorrow. I am Pallavi and I'll teach you today economics of class 9th. Okay, हमने I have already taken one class of this chapter earlier. So now let's begin with the next part of the topic. So before starting, let's revise what we have learned before. Okay, so what we have learned is first of all, we know that there is a village named Palampur. ठीक है, पालमपुर जो विलेज है वो क्या है? एक इमेजिनरी विलेज, इट्स एन इमेजिनरी विलेज एंड वहाँ के मेन मतलब हमने जब उस विलेज के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? वहाँ की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट. लोग क्या करते हैं वहाँ पे? पीपल डू दिस टाइप ऑफ जॉब्स. ठीक है, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, dairy, transportation. Okay, and we have also learned that there are very small amount of like very limited families, that is 450 families only, and those families are also divided into categories like upper class and low class. Okay, and there are very less of upper class people and so much of low class people, and we have also learned that upper class people are having like proper houses, houses those are of cement brick houses and everything, whereas the lower class people or the minority people, they have a house of mud and straw. Okay, and we have also read about the infrastructure of the Palampur. So what was there? There was two primary schools, one high school, one private hospital, and one government uh, government primary health center. Okay, that is government primary health center is something that is given by the government. Okay, and there are various transports available, and we have also learned that Palampur do have electricity. There is a proper supply of electricity, and what the farmers do, they use electric tube wells to supply water to their fields. Okay, and we have also learned about organization of production. Because we are studying economics, so we can, what we think, we can only extract. अगर हम इकोनॉमिक्स लेट्स अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दैट वी विल रीड समथिंग अबाउट इकोनॉमी, something related to money, how money can be generated, how we can use money, how money can be made. Okay, तो सब there are various ways we can make money. सबसे पहले क्या है, like there are various way, it is true, but सबसे important मतलब प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? देर आर फोर थिंग्स, दोज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ये हमने पढ़ा था. नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर में लोग कैसे फार्मिंग करते हैं एंड व्हाट आर लाइक व्हाट दे ग्रो, है हाउ दे ग्रो, हाउ कैन दे यूज द बेस्ट, हाउ दे कैन यूज देयर लैंड इन द बेस्ट वे, है ना? बिकॉज लैंड्स आर लिमिटेड इन पालमपुर. पालमपुर में जो बहुत ही कम लैंड्स है, सिंस 1960 कोई लैंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना? एंड हाउ पीपल ऑफ पालमपुर कैन ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप एंड अर्न मोर मनी विदाउट increasing their lands. तो हमने वो भी पढ़ा था. how can they do that? They can do it by so like by farming thrice a year, like हर साल वो 3 बार क्रॉप उगा सकते हैं, है ना? नेक्स्ट and what are the like also facilities like electric tube well, ये सारी irrigation, proper irrigation system, these things help in agriculture. Okay, so today we'll read about green revolution. Green revolution क्या होता है? Okay, green revolution, it it was introduced to the farmers in 1960. green revolution एक ऐसा revolution है जो ग्रीन वर्ड सुन के हमें क्या लग रहा है? समथिंग रिलेटेड टू ग्रीनरी, है ना? तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो हमारी गवर्नमेंट ने पास किया था. ठीक है, टू क्या बोलते हैं, टू एम्पावर आवर फार्मर्स. हमारे फार्मर्स का जो क्या बोलते हैं, इनकम इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये निकाला था, ये रेवोल्यूशन. ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द फार्मर इन 1960. 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. ओके, this focuses on the cultivation of wheat and rice using high yield variety, that is HYVs of seeds. ठीक है, मैं समझाती हूँ. ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या फोकस था? ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस था टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस. राइस एंड व्हीट को कल्टीवेट करना, लाइक मोर दे कैन कल्टीवेट व्हीट एंड राइस. and how they can use by using high yield varieties.
ठीक है। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स क्या बोलते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं या फिर जिनसे मतलब लाइक इन वन क्रॉप देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ ग्रेन। मतलब सपोज धान की खेती हो रही है, ठीक है, तो धान की खेती में क्या होता है, एक पेड़ में नॉर्मली जितना धान आता है, अगर हम हाई यील्ड वेराइटीज मतलब HYV सीड्स यूज करेंगे तो क्या होगा, उससे बहुत मल्टीपल टाइम्स ज्यादा सीड्स हमें आएंगी, मतलब सॉरी मल्टीपल टाइम्स हमारा क्या होगा, धान ज्यादा आएगा। ओके। हाई यील्ड वेराइटी सीड का मतलब हाई यील्ड वेराइटीज का मतलब यही होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ओके। HYV seed promises to produce more greater amount of grain on a single plant। एक सिंगल वो क्या प्रॉमिस करते हैं, अ सिंगल प्लांट में ज्यादा ग्रेन आएगा। दे promises more production। ओके। नेक्स्ट, HYV seeds however need plenty of water। HYV सीड जो है, ठीक है, वो हायर क्या बोलते हैं उसको, हायर प्रोडक्शन तो देते ही हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए होता है, दे वांट वाटर, दे वांट केमिकल फर्टिलाइजर एंड दे वांट पेस्टिसाइड्स। वाटर 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 कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय इरिगेशन। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि पालमपुर में तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, सो दे व्हाट दे डू इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल की मदद से क्या कर सकते हैं, वो लोग लार्ज एरिया कल्टीवेट कर सकते हैं। तो वाटर सप्लाई डन। नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर्स किसको बोलते हैं, जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ मतलब क्या, प्रोडक्शन मतलब हमारे फर्टिलिटी, हमारे जो लैंड का फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अर्लियर मेथड्स क्या होते थे, लोग नेचुरल नेचुरल मेथड्स यूज करते थे। फॉर एग्जांपल काउ डंक है ना, मैन्योर, और एक क्या होता है हाउस होल्ड वेस्ट। ये सारी चीजें एज अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करते थे टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। वेयर एज नाउ जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स है, इनको ज्यादा इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो हम पेड़ों में डालते हैं ताकि उनमें कीड़े मकोड़े ना लगे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। बहुत सारे जो ग्रेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े लगने की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और फार्मर्स को बहुत लॉस उठाना पड़ता है। तो हाई मतलब जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें उसमें क्या चेंजेस आए कि उसमें वाटर था, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे एंड पेस्टिसाइड्स थे। ठीक है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश वर फर्स्ट टू कल्टीवेट अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। हमें क्या पढ़ा है कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह है जहाँ के फार्मर्स ने क्या किया है, दे वर द फर्स्ट टू कल्टीवेट ग्रीन रेवोल्यूशन। इन लोगों ने बहुत ही जल्दी ग्रीन रेवोल्यूशन को अपना लिया एंड उन लोगों ने क्या किया, कल्टीवेट किया। ओके, वेयर पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ के देखना तुम अगर स्टेटस चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे ही सबसे ज्यादा वी कैन से पंजाब इज द हाईएस्ट ग्रोइंग क्रॉप, मतलब दे आर वेरी हाई। पंजाब इज अ स्टेट विच ग्रो हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेन्स। ओके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, they are the one those who accepted green revolution first। Okay, some farmers also brought machineries like tractor and threshers which made plowing and harvesting fast। मतलब ये है कि कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिन लोगों ने क्या किया, मशीनरीज मंगाई, क्योंकि दे हैव अ लार्ज लार्ज फील्ड, उनको इनकम ज्यादा होने लगी, उन लोगों का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो उनके पास क्या हुआ, पैसे भी ज्यादा आए। तो उससे क्या हुआ, दे स्टार्टेड डूइंग दे स्टार्टेड परचेजिंग ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। ट्रैक्टर्स क्या करते थे, प्लाव करने में बहुत जल्दी, प्लाव करने का मतलब खोदने में, है ना, जमीन में जब हम सीड्स डालते हैं तो उससे पहले हमें जमीन को खोदना पड़ता है ताकि हम सीड्स उसमें प्रॉपर्ली प्लांट कर सके। तो ट्रैक्टर्स किस चीज में हेल्प करते हैं, जो लैंड है उसको प्लॉव करने में हेल्प करते हैं। एंड थ्रेशर्स किसको बोलते हैं, थ्रेशर्स ऐसी मशीनरी है जो हार्वेस्ट करने में हेल्प करती है। लाइक जब क्रॉप राइप हो जाता है, पक जाता है, जब उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तो थ्रेशर्स क्या करता है, बहुत ही इजीली सारा हार्वेस्टिंग भी करता है। ओके, तो दीज आर फ्यू गुड पॉइंट्स अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन कि ये 1960 में हुआ। इसने क्या किया, दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस एवरीवेयर एंड उसके बाद क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए जिनको वजह से क्या हुआ, हमारे जमीन उपजाऊ बने, है ना, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। तो दीज ऑल थिंग्स आर डन फॉर क्या है, बेनिफिटिंग द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू रिमेम्बर दीज टॉपिक। ओके, तो ये सब तो हमने पढ़ा कि हाँ
हम ज़्यादा ज़मीन में अगर हम ज़्यादा क्रॉप लगाएँगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, है ना? तीनों टाइम उसमें क्रॉप लगाएँगे तो प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा। लेकिन क्या विल द लैंड सस्टेन? क्वेश्चन इज़ विल द लैंड सस्टेन? इतना सब लैंड को अगर हम यूज़ करेंगे तो लैंड का क्या होगा? फर्टिलाइज़िंग का जो ओन फर्टिलिटी होती है, एक सॉइल का एक सॉइल का जो मतलब फर्टिलाइज़िंग पावर होता है, वो अपने आप में क्या होता है? रिड्यूस होने लगता है, ठीक है? लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, तो लैंड में जो हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिग्रेडेड, मतलब वो उनकी जो पावर होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है? अगर सपोज तुम किसी लैंड में नया नया प्रोडक्शन करोगे या फिर वीट ग्रो करोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, एज कम्पेयर अगर तुम बार बार उसी लैंड में कल्टीवेट करोगे तो मे बी उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ओके, तो ये होता है। Scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resources. Scientific reports क्या indicate करते हैं कि जो modern farming method है, जैसे कि ये green revolution में हमने क्या किया, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज किए जिसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर लगा, पेस्टिसाइड्स लगा। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो गए, moved have the use of natural resources. Modern farming method have overused the natural resources. इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ओवर यूज हो गए, ठीक है? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हुआ, जो सॉइल का अपना ओन फर्टिलिटी है वो लूज हो गया, मतलब हमें बार बार ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर क्या हुआ, सॉइल का जो ओन फर्टिलिटी होता है, जो उसके अपने फर्टिलिटी है वो कम होने लगी। तो हमें जब नेक्स्ट टाइम हम उसमें लाइक वो करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब उसमें प्रोडक्शन करेंगे या फिर वीट सो करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, उसका हमें और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल। अगर हम बार बार, जैसे हमने पढ़ा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल इलेक्ट्रिक, पहले क्या करते थे, वेल से पानी निकाल निकाल के डालते थे, बट अब क्या हो गया, ट्यूबवेल हो गया, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो लेकिन उससे क्या होता है कि लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं, है ना? तो वो लोग वाटर का ज्यादा यूज कर लेते हैं, और अगर हम कभी भी ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होता रहेगा। तो वो बात भी है, ठीक है? तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमें क्या सोचना चाहिए, हमें उनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सोचना चाहिए फॉर देयर फर्दर यूज, ताकि हम उनको बार बार यूज कर सके, फ्यूचर में भी यूज कर सके। ओके, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स। इसका मतलब है ये है हमारा पालमपुर से रिलेटेड। ओके, पहले जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे वो क्या था, वो इन जनरल था, ठीक है? एक्चुअल में इंडिया में ऐसा हुआ है इन 1960, बट पालमपुर क्या है, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। ओके, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स, आउट ऑफ फोर, हमने क्या पढ़ा था, पालमपुर में कितनी फैमिलीज है, 450 फैमिलीज। तो आउट ऑफ 450 फैमिलीज 150 आर दलित्स एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। क्या बोले, उसमें से 150 जो फैमिलीज है वो लोग दलित है, दलित मतलब लोअर क्लास, एंड वी कैन से माइनॉरिटीज। ओके, तो उन लोगों के पास क्या है, देर इज नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। उसके बाद क्या है, 240 कल्टिवेटेड स्मॉल लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। जो 240 फैमिलीज है वो दे कल्टीवेट स्मॉल लैंड्स, जो इनका साइज क्या है, 2 हेक्टेयर से भी कम है, डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम, और उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा इनकम भी नहीं आता है, ठीक है? बिकॉज वो लोग कम एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं, तो कम एरिया में फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, कम इनकम होगा। ओके, नेक्स्ट इज मोर देन हाफ एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। जो पालमपुर का जो विलेज है उसमें जो एरियाज हैं कुछ कुछ, जो मोर देन हाफ, मतलब अगर हम टोटल एरिया को डिवाइड करते हैं हाफ में, तो जो हाफ से ज्यादा एरियाज है वो क्या है, लैंड, सॉरी, लार्ज पार्ट ऑफ लैंड में डिवाइडेड है, मतलब वहाँ पे लैंड छोटे छोटे नहीं है, बड़े बड़े लैंड हैं, ठीक है? देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। वहाँ पे क्या है, 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। क्या है, 60 फैमिलीज हैं जो लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है, एंड दे कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब उन लोग के पास जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, ठीक है? तो उनका इनकम क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। और दूसरा क्या है, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हु हैव मोर देन 10 हेक्टेयर। ऐसे भी फार्मर्स है पालमपुर में जो, जिनके पास क्या है, मोर देन 10 हेक्टेयर है, ठीक है? तो सोचो उनका कितना ज्यादा इनकम होगा, तो उनका और भी ज्यादा इनकम होता होगा, ठीक है? हु विल प्रोवाइड द लेबर? अभी पालमपुर विलेज में क्वेश्चन ये है कि जमीन, अभी सोचो सबके पास इतनी सारी जमीन है ना, किसी के पास 2 हेक्टेयर वाली जमीन है, या फिर किसी के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन भी है, या और किसी किसी के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। तो अभी वो लोग अकेले तो काम नहीं कर सकते एक फील्ड में,
तो दे नीड लेबर हेल्पर्स जो आके उनके फील्ड में काम करेंगे, है ना। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटी इन फार्मिंग की, हमें पहले प्लाव करना पड़ता है, फिर हमें सीड्स डालने पड़ते हैं, फिर सीड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ना, बहुत सारा हार्वेस्टिंग होता है, तो ये सारे काम कौन करेगा, ठीक है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोला गया है, लैंड एंड लेबर के बाद क्या है, लेबर द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क, ठीक है। फार्मिंग क्या है, हार्ड वर्क है। ओ फर्स्ट पॉइंट आप लोग को समझ में आया, आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर आता है, लैंड तो इंपॉर्टेंट है ही, वरना लैंड नहीं होगा तो हम कहाँ पे कल्टीवेट करेंगे, राइट। लैंड तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ क्या है, लेबर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क, फार्मिंग में बहुत मेहनत लगती है, तो सबको पता है कि फार्मर्स डू वेरी हार्ड वर्क। फैमिली स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट देयर ओन लैंड विद देयर फैमिलीज। तो क्या है, पालमपुर विलेज में जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास छोटा छोटा लैंड है, वो लोग क्या करते हैं, दे कल्टीवेट देमसेल्फ, वो लोग खुद ही अपने जमीन में काम करते हैं, दे हेल्प मतलब उनके फैमिली मेंबर्स भी उनका हेल्प कर देते हैं। वेयर एज जो मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, दे हायर लेबरर्स, वो लोग क्या करते हैं, लेबरर्स हायर करते हैं टू वर्क इन देयर फील्ड, है ना। एंड क्योंकि अकेले तो इतना सारा काम किया नहीं जा सकता, दीज फार्मर लेबरर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। तो ये लेबरर्स कौन होंगे, अगर सपोज एक सीजन में क्रॉप ग्रो करते हैं, तो जिनके पास स्मॉल लैंड है वो लोग तो अपना अपने अपने लैंड में काम करने के लिए चले जाएंगे, तो बड़े बड़े लैंड में कौन काम करेगा, ऐसे लोग जो लोग लैंडलेस है, लैंडलेस फैमिलीज है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, दे डू नॉट हैव राइट ओवर। अच्छा लैंडलेस लेबरर्स कौन होते हैं, दे डू नॉट हैव राइट ओवर द ग्रोन क्रॉप, दे ओनली गेट डेली वेजेस। मतलब लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो दूसरों की जमीन में काम करते हैं एंड देन दे गेट डेली वेजेस, मतलब उनको डेली पेमेंट मिलता है। बट क्रॉप्स जो वो लोग उगाते हैं वो किसका हो जाता है, वो लैंड ओनर का हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है, डेली वेजेस मीन्स दे हैव टू लुक फॉर वर्क रेगुलरली। मिनिमम वेजेस सेट बाय गवर्नमेंट इज 300 रुपीज पर डे। हमारे गवर्नमेंट ने स्लैब रेट किया है और वहाँ पे 300 रुपीज इज द मिनिमम वेज। तुम 300 रुपीज से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन 300 रुपीज से ज्यादा सॉरी कम नहीं दे सकते, ओके। डेली वेजेस मीन्स दे हैव टू लुक फॉर वर्क रेगुलरली। और जो डेली वेजेस वर्कर्स है, इसका मतलब क्या है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उनको क्या है, एवरी डे काम ढूंढने जाना पड़ेगा, आज कहाँ पे काम मिलेगा, कल कहाँ पे काम मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। कैपिटल नीड इन फार्मिंग मतलब फार्मिंग क्या फ्री में हो जाती है, नहीं, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, है ना। स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फैमिलीज और मनी लेंडर्स। क्या है, जो स्मॉल फार्मर्स है उन लोगों की जमीन तो बहुत छोटी छोटी होती है ना। तो उससे क्या होता है, इनकम भी उनका कम होता है, तो अगर उनका इनकम ही कम होगा तो क्या वो लोग कुछ अमाउंट सेव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर उनको फार्मिंग करना पड़ेगा, तब वो लोग क्या करेंगे, उनको जो लोन लेना पड़ेगा, और वो लोग लोन किससे लेते हैं, मनी लेंडर से या फिर लार्ज फार्मर से, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच लोन इज वेरी हाई। और ऐसे लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर मनी लेंडर्स हैं, ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऐसे, ओके। रेट ऑफ सॉरी in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving for farming. Of course, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास क्या होता है, कम जमीन होती है, तो उनका इनकम भी कम होता है, तो इसलिए वो लोग सेव नहीं कर पाते। वेरस जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है उनके पास क्या होता है, ज्यादा जमीन होती है, तो इनकम भी ज्यादा होता है, सो दे आर एबल टू सेव सम मनी। तो वो लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ पैसे बचा पाते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स के केस में पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग, आई मीन वो लोग क्या करते हैं, मनी लेंड भी कर पाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही कवर करते हैं हम, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चिल्ड्रंस डू रिमेंबर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड how capital is important, how the village like how the farmers of village Palampur they get capital for their farming, and what are the necessary ways of getting the labors for doing the work in farming। तो फार्मिंग जो है ये पालमपुर का भी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो आई थिंक क्या है 80% ऑफ पालमपुर के लोग करते हैं, ओके। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।